Okay, so we have already finished question number 5. Today we are going question number 6 also we have done. And now question number 7. From question number 7 we have to start. So first I'll read the question, then we'll start solving it. In question number 7 it is saying that write all the integers between the given pairs. Two numbers, the pair of two numbers is given to you and you have to write the numbers in increasing order. I suppose I have already completed this question. So we will start with question number 8. ये question मैंने आपको करा दिया अभी. So we will start with question number 8. In question number 8, we have to write 4 negative integers greater than minus 20. 4 negative integers greater than minus 20. Okay, so you have to write 4 integers greater than minus 20. 4 नेगेटिव, पहली चीज तो नेगेटिव होनी चाहिए और ग्रेटर देन माइनस 20. ठीक है, तो मैं सिर्फ नंबर लाइन में वो नेगेटिव वाला पार्ट ही ड्रॉ कर रही हूँ, पॉजिटिव की हमें जरूरत नहीं है. सो आई एम ड्रॉइंग जस्ट द नेगेटिव पार्ट. लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपका बेटा 20 है, here is your minus 20 है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा minus 19, you will get minus 18 here, minus 17 here and minus 16 here. इसी तरह से आगे आगे चलता जाएगा 0 तक. ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो 0 है, तो इस साइड you will get minus 21, minus 22, minus 23 and minus 24. In the question it is said that you have to write the greater integers than minus 20. जो भी integers आपको लिखने हैं that should be greater than minus 20. So will you write these set of integers or will you write these set of integers? Since we have studied that in negative integers, जिन numbers जो numbers छोटे दिखते हैं with a minus sign they are greater than the previous number. हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, जो those numbers who are on the right side, जो भी इस तरफ जब भी हम नंबर लाइन के मूव करते हैं we get the greater number. राइट साइड में आप मूव करोगे तो आपको ग्रेटर नंबर मिलेंगे, है ना. एंड व्हेन यू विल मूव टू द लेफ्ट साइड यू विल गेट द स्मॉलर नंबर. नंबर धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे. तो in this question you will write the number 4 integers which are greater than minus 20. They are minus 19, minus 18, minus 17 and lastly minus 16. ठीक है, अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं विदाउट देयर माइनस साइन, अगर मैं सिर्फ 19, 18, 17 या 16 बोलती तो ऑब्वियसली ये सारे नंबर्स जो है वो 20 से छोटे हैं. बट हियर वी आर डीलिंग विद अ नेगेटिव साइन. बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ नेगेटिव साइन, इन नंबर्स की जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाती है. मतलब जो minus 19 है it is greater than minus 20. Why? Because in the number line it is lying close to the 0 and it is on the right side of the number minus 20 and that is why it is greater than minus 20. Okay, so this was your question number 8 part A. Okay, and B part. Write 4 integers less than minus 10. In this part you have to write 4 integers less than minus 10. In this question you have to write 4 integers which are less than minus 10. तो आपको नंबर लाइन में आप बेटा खुद से इसको अज्यूम करो. नंबर लाइन का हम इसको प्लॉट करेंगे, है ना. इफ वी विल प्लॉट ऑल दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन तो आप देखोगे कि ये फिर से हम नंबर लाइन की रेफरेंस लेते हैं. यहाँ पे आपका 0 पॉइंट है, इस तरफ यू हैव द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इस तरफ यू हैव द नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट 10 इज समवेयर हियर. ठीक है, यहाँ पे होगा 0.9, यहाँ पे है -8
ऑल दीज आर नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे इट इज -11 -12 -13 -14 एंड -50 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से पॉइंट प्लॉट है। यहाँ पे 0 से 8 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग ऑल दीज नंबर्स। ठीक है, हम अपने सिर्फ काम भर कर लेते हैं जितनी हमें जरूरत है। So since in the question it is asking that you have to write 4 integers which are less than मतलब होता है छोटा, ठीक है, जो -10 से छोटे हो। आपको ऐसे 4 इंटीजर्स लिखने हैं which are less than -10, ठीक है, ऐसे 4 इंटीजर जो -10 से छोटे हैं। तो आप क्या लिखोगे? अगर आप इस साइड के इंटीजर्स को लिखोगे तो ये सारे इंटीजर्स 9 -9 -8 all these integers are greater than 10, sorry, all these integers are greater than -10. Okay, so here in question we have to write the integers less than -10. so हमने पढ़ा है जब हम राइट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो हमारे इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू कम होती रहती है। तो अगर आपको 4 इंटीजर्स लेस देन -10 लिखने हैं तो यू विल राइट -11 -12 -13 and -14. These are the 4 integers which are less than -10. As you can see कि अगर ये जो नेगेटिव साइन लगा है, it has changed the concept, whole concept, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सारा कंसेप्ट ये नेगेटिव इंटीजर ने चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम इन नंबर्स को विदाउट देयर साइन देखें, अगर हम सिर्फ 11 12 13 14 को देखेंगे तो ये सारे नंबर 10 से ग्रेटर है, बट सिंस इनके आगे देयर इज अ नेगेटिव साइन, ये सारी जो वैल्यूज है चेंज हो गई। यानी जो -11 है वो छोटा हो गया किससे? -11 is less than -10, है ना, and -12 is also less than -10. तो ये सारे नंबर्स -11 -12 -13 -14 all these numbers are less than -10. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल if you are solving the question you should read the question. जैसे मैंने क्वेश्चन में अंडरलाइन किया है कि ये चीजें मुझे ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? कि आपको 4 इंटीजर्स लिखने हैं जिनकी वैल्यू लेस देन हो -10 से। तो you should not get confused in the exam. आप उल्टा पुल्टा करके मत आ जाना, ठीक है? It's better that read the question, understand the question कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, then start answering it. ठीक है, जिसको बिगिनिंग में प्रॉब्लम हो रही है they can take the reference of the number line. Number lines should be very clear in your mind कि आपको कहाँ पे कौन से numbers plot करने हैं. On the right side of the zero you have to plot the positive integers and on the left side of the zero you have to plot the negative integers. जो भी उल्टा प्लॉट करेगा उसका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. Is that clear? Now in question number 9, let's take another question. Question number 9. Write the following statements. Write true or false if these statements are false. Correct the statement. क्वेश्चन में आपको दो चीजें करनी है। पहले तो आपको स्टेटमेंट को रीड करके ट्रू या फॉल्स बताना है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वी आर टेकिंग पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में -8 is to the right of -10 on the number line. क्वेश्चन में कहा गया है -8 जो है, जल्दी से एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, 1 -2 बीच में और सारे पॉइंट्स हैं। हमें सिर्फ -8 और -10 से काम है, तो हम लोग उसी को प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो -8 है वो राइट साइड में है -10 के, ठीक है। तो आप पहले किस नंबर को देखोगे, यू विल सी द नंबर 10, ठीक है। 10 के इस तरफ यू विल गेट द राइट साइड, 10 के इस तरफ यू विल गेट द लेफ्ट साइड। आई होप आपको राइट और लेफ्ट क्लियर हो। जिस ये दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दैट -8, this number -8 is towards the left of -10. So when you will plot these two numbers on the number line, you will see that -8 is plotted towards the right of the -10. So this statement, the first statement is true. Okay. आप इसमें क्लियरली देख सकते हो बेटा, जो -10 है जो उसकी राइट साइड में हमारा इंटीजर -8 है वो प्लॉट किया गया। ओके, तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, तो हमें इसको सही करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट में देखते हैं -100 is to the right of
50 on the number line. सपोज ये 50 है, यहाँ पे ये 60 कर लिया, 70, 80, 90 और ये 100. ओके, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि -100 इज टू द राइट ऑफ -50. मतलब -50 आपका ये है, -50 के इस साइड वाली जितनी भी लाइन होंगी, नंबर्स होंगे, दे विल बी प्लॉटेड ऑन दी लेफ्ट साइड, और इस तरफ जो भी नंबर्स होंगे दे विल बी प्लॉटेड ऑन दी राइट साइड. तो क्वेश्चन में इट इज आस्किंग दैट ये जो नंबर है हमारा -100, दिस इंटीजर इज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द integer -50. This integer is towards the right side of the number -50. So when you will plot it on the number line, you can clearly see that it is not on the right side but it is on the left side. So you will say कि ये स्टेटमेंट है फॉल्स. आप इसको कैसे करेक्ट करोगे? करेक्शन क्या करोगे? यू विल से द इंटीजर -100 is towards the left side, towards the left side of -50. Okay, you will say that the statement जो आपको दी थी जिसमें मेंशन था कि that -100 is towards the right side of the -50 on the number line, you will say the statement is false, and the correct statement is that the integer -100 is towards the left side of -50. Okay. Third statement. In the third statement, you will see that smallest negative integer is -1. This is a very good question. यहाँ पे 0 है बेटा, अब इसके इस तरफ है पॉजिटिव साइन के नंबर जिनका भी हमें काम नहीं है. यहाँ पे है नेगेटिव इंटीजर जिसका हमें काम है. ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ 1 है, -2 है. लेट अस प्लॉट द नंबर लाइन. दिस इज -4, दिस इज -5, this is -6, this is -7 and this is -8. अभी हम सिर्फ इतने ही नंबर्स को प्लॉट करते हैं क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है हम इतने से ही समझ जाएंगे. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन में इट इज आस्किंग दैट इज द -1 जो है क्या वो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है ना, ये पूछा गया है. तो हमने ये पढ़ा है कि इस तरफ जितने भी इंटीजर जो 0 के करीब होते हैं दे आर, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, मतलब जो सबसे करीब है 0 के नंबर वो है हमारा सबसे बड़ा. ये वाला जो नंबर है ये हमारा सबसे छोटा नहीं होगा, इट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर. व्हाई? क्योंकि हमने ये पढ़ा है व्हेन वी हैव लर्नड टू प्लॉट द नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, वी हैव स्टडीड दैट those numbers which are close to 0 and which are towards the right hand side, एक दूसरे की, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 2 और 1 में राइट हैंड साइड पे कौन है? 1 है ना. 3 और 1 में राइट हैंड साइड पे कौन है? 1 है. 4 और 1 में राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है? 1. फिर आप इस तरह से अगर कंपेयर करोगे तो आप हर केस में देखोगे, अगर आप नंबर लाइन को बहुत आगे भी प्लॉट करोगे, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे 100 तक भी प्लॉट किया, तो जब आप कंपेयर करोगे कि 100 और -100 और -1 में राइट हैंड साइड पे कौन है, कौन सा नंबर है, तो आपको हमेशा क्या नंबर मिलेगा? आपको हमेशा -1 मिलेगा. तो ये जो -1 है इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, रादर इट इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा वाला इंटीजर है ये जो -1 इज नॉट द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इट इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, -1 is not the smallest negative integer, it is the largest negative integer. तो आपकी जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको मेंशन है कि -1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है. तो आप लिखोगे नो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, फिर उसको करेक्ट करके भी लिखना है. तो आप करेक्शन में क्या लिखोगे? -1 इज द largest negative number. You will write -1 is the largest negative number where in the number line. Okay.
क्यू है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इज डी, -26 इज ग्रेटर देन -25। -26 को ग्रेटर बताया गया है क्वेश्चन में -25 से, तो यू विल से द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब आप नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करोगे, है ना, 0 ले लिया हमने और यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट करें। मान लो ये है 22, -22, -23, -24, -25 और ये -26। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, -26 को और -25 को, तो यू विल सी दैट -25 इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द इंटीजर -26। जो -25 है वो -26 के राइट हैंड साइड पे है ना, ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है, तो ये वाला इंटीजर जो है वो बड़ा होगा। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि -26 ग्रेटर है 25 से, -25 से, so you will write that ये statement is false here because correct आप इसको करके लिखोगे -26 is less than -25, ओके, आप इस तरह से इसको मेंशन करोगे। नाउ we have the last question, that is question number 10 part, जिसमें से you have B and C part is not there in your syllabus anymore. B and C part is not there in your syllabus. बेटा अभी आप इसको तुरंत अपनी कॉपी में बुक में मार्क कर लो, later on I will not answer this again. ठीक है? In this question also you have to draw a number line and answer the following question. आपको इसमें एक number line को draw करना है और कुछ questions को answer करना है on the basis of the number line. ठीक? तो question है which number will be reached if we move 4 numbers to the right of -2. ये है number line 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is -1, -2, -3, -4. फिर आपसे इसमें कहा गया है कि आप बेटा वेट, आपको 4 नंबर्स मूव करना है -2 से, -2 से आपको 4 नंबर्स आगे बढ़ना है, 4 नंबर्स आगे बढ़ना है और आपको देखना है कि आप कहाँ पहुंचोगे। तब आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, जब आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा तो आप हमेशा राइट साइड में मूव करोगे, ठीक है, आप हमेशा आगे राइट साइड में मूव करोगे। तो आप 1, 2, 3 और 4, क्योंकि आपको 4 नंबर मूव करने के लिए कहा गया था, हमने इसलिए 4 स्टेप चले, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए कहा है, अगर पीछे बढ़ने के लिए कहा होता तो हम इस डायरेक्शन में वापस आते, है ना, पर क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए कहा गया है मूव 4 नंबर्स टू द राइट। राइट साइड कौन सी होगी? ये वाली, है ना। तो इस तरफ हम जब 4 आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? वी विल रीच एट +2, ठीक है। तो इन द क्वेश्चन यू विल ड्रॉ द नंबर लाइन, आप इस तरह से दिखाओगे कि आपने -2 से 4 आगे अहेड मूव किया है, ठीक है। जब -2 से आपने 4 स्टेप्स आगे लिए राइट साइड में, तो आप किस नंबर पे पहुंचे? यू हैव रीच्ड टू नंबर 2, ओके। डी पार्ट, okay, in question number 10, B part of exercise 6.1, the question is if we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -10? तो क्वेश्चन में you can see that सिर्फ नंबर लाइन के नेगेटिव पार्ट्स की बात हो रही है, तो हम पॉजिटिव वाले को प्लॉट नहीं करेंगे, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। We have assumed कि number line के start there are positive integers and इस तरफ there are negative integers, ठीक है। दो तरह के integers दिए गए हैं। If we are at -6, ठीक है, let us see, suppose that यहाँ से आपने start किया -1, -2, -3, -4, -5 and -6, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन में -6 पे और आपको पहुंचना है -1 पे। यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, सपोज दिस इज यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू हैव टू रीच हियर।
you have to reach this point and presently your position is at on integer -6. तो आप किस डायरेक्शन में बेटा मूव बेटा who is this, please mute yourself. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपकी प्रेजेंट पोजीशन है -6 पे, ठीक है, और आपको पहुंचना है -1 पे, है ना। तो आप किस डायरेक्शन में मूव करोगे कि आप -1 पे पहुंच जाओ। तो आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यहाँ पे ये 6 है तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, इस तरफ हमारी राइट डायरेक्शन है। तो यू विल से that if we are at -6 and we have to reach at -1, then we have to move in the right direction. We have to move in the right direction. Beta mute yourself. You have to move in the right direction. Okay. If you are standing on -6 and you have to reach till -1, then you have to move towards the right hand side of yourself, मतलब आप right direction में move करोगे। Okay, so this was your exercise 6.1 question number 10. Now we are going to study about the addition and subtraction of integers. ठीक है, आप ये देख सकते हो in the first rule which we are going to study in addition of integers is that यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट इंटीजर लिखा है, यहाँ पे आपका पहला नंबर होगा। हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली दो नंबर्स की करते हैं, वी रिक्वायर टू नंबर्स टू ऐड एंड टू सब्ट्रैक्ट। सो दिस इन द फर्स्ट कॉलम आपका पहला इंटीजर है, सेकंड कॉलम में आपका दूसरा इंटीजर है, ठीक है। जब हम इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारा रिजल्ट कह सकते हो या एडिशन या प्रोडक्ट, जो भी आपको कह रहा हूँ। इन द थर्ड कॉलम इज योर रिजल्ट। ओके, तो अगर बेटा आपके पहले इंटीजर का मैं एक एक प्रॉब्लम लेती चलती हूँ, उसको मैं आपको नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन पे भी बताऊंगी और बिना नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करना भी बताऊंगी, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वन मोर थिंग कि जो आपका सेकंड पीरियड है, आई एम टेकिंग दैट पीरियड आल्सो बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ सिलेबस एंड वी हैव टू डू इट, ठीक है। तो मैं आपको बीच में ब्रेक भी दे दूंगी, बट सेकंड पीरियड ऑफ योर हिंदी पीरियड इज आल्सो आई एम टेकिंग। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द कांसेप्ट। आपको अगर दो इंटीजर्स दिए हैं, ठीक है, पहले में आपका पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव, और दूसरे में आपका पॉजिटिव साइन है, तो आपका जो रिजल्ट है बेटा, आप जो है दोनों की फाइनल एडिशन करोगे, ठीक है। इफ योर फर्स्ट इंटीजर इज पॉजिटिव, योर सेकंड इंटीजर इज पॉजिटिव, यू विल ऐड बोथ द इंटीजर्स एंड जो उसके आगे हम साइन लगाएंगे दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव। तो लेट अस सी दिस थ्रू एन एग्जांपल। ये हमारा पहला है, दूसरा, तीसरा एंड दिस इज द फोर्थ, ठीक है। तो अभी हम ये पहले वाले को देखने चल रहे हैं, पहले वाले को प्रूव कर रहे हैं कि जब हमारे पास दोनों नंबर्स जिन्हें हमें ऐड करना है उनका जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ले लो, यू हैव टू ऐड +3 +5। ये ब्रैकेट में मैंने जो +5 लगाया है, इसको इसका ये मतलब है कि जो साइन हमारा है, जो प्लस साइन लिखा है वो 5 के आगे, वो उसका एक साइन है, ठीक है। तो आपको बुक में क्वेश्चन इस तरह से बहुत दिखेंगे कि यहाँ पे भी प्लस है, इन ब्रैकेट यू विल सी प्लस अगेन। तो अब हम इसकी पहले दो तरह के इसको ऐड करना सीखेंगे। फर्स्ट थ्रू दी नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन से कैसे इसको हम करेंगे, फिर उसके बाद जो भी मैंने आपको फॉर्मूला या रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको ऐड करना हो, whenever you have to add two integers, you will move on the right hand side of the number line, ठीक है। Listen to it very carefully. Whenever you have to add two numbers, ये हमारी नंबर लाइन में you have to add two numbers, you will move towards the right hand side, ठीक है, write it somewhere in your copy. And whenever you have to subtract, यहाँ पे हमारा 0 है, whenever you have to add the integers, you will move towards the right hand side of the number line. And whenever you have to subtract, I am writing SUB for subtraction, you have to move towards the left hand side of the number line. Madam, you are not audible. Better, my mic is on. Check your network. Okay.
So whenever you have to add two integers, you have to move right hand side on the number line, and whenever you have to subtract two integers, you will move towards the left hand side of the number line. Okay, so in front of me I have a question that we have to add two integers, दोनों का साइन पॉजिटिव है, प्लस 3 नंबर 3 is also in positive case and number 5 is also a positive integer. तो अब हम इसमें किस तरफ मूव करेंगे? We will obviously move towards the राइट हैंड साइड. ठीक है, अगर मैं ये नंबर लाइन ले लूं, यहाँ पे है 0, दिस साइड we will plot the positive integers and this side we will plot the negative integers. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Okay, suppose that I have to add 3 plus 5, तो ये 3 है ना, 3 इसको आगे और 7 और 8. ठीक है, यानी आपके पास अभी इसको इंटीजर्स में ना समझ करके आपको ये देखना है कि जैसे मेरे पास 3 टॉफीज हैं, है ना, मेरे पास आई ऑलरेडी हैव 3 टॉफी, फिर उसमें एडिशन हो गया 5 टॉफी का, यानी मेरे एक हाथ में 3 टॉफीज थी, फिर मैंने उसमें 5 टॉफीज को ऐड कर दिया, यानी अगर मैं 3 पे हूँ तो मुझे 5 को ऐड करना है अपने आप में, तो मुझे 5 स्टेप टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन मूव करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है दैट व्हेनेवर वी हैव टू ऐड टू इंटीजर्स वी मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. तो आपको यहाँ पे 3 में बेटा 5 को ऐड करना, मतलब आपको 3 पे तो आपको उसमें आपको 5 स्टेप आगे बढ़ना है, तो आप 5 स्टेप्स आगे बढ़ोगे, 1 2 3 4 5, आप कहाँ पे पहुँच गए? 8 पे. ठीक है, तो जनरली भी आपको पता होगा कि आप जब 3 में 5 ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा. तो नंबर लाइन पे हमने प्लॉटिंग देखी इंटीजर्स की, व्हेन वी हैव टू ऐड वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. तो फर्स्ट पोजीशन हमारी थी 3 पे, देन वी हैव मूव 5 स्टेप्स अहेड, क्योंकि हमें 3 में 5 को ऐड करना था. जब हमने 3 में 5 को 5 स्टेप्स आगे मूव किया तो हम किस पे पहुंचे? 8 पे. तो यू कैन से दैट 3 प्लस 5 इज 8. ओके, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई नंबर लाइन के थ्रू. अब हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है कि whenever two integers are in the plus sign you will add the integers, उसके साथ कैसे करेंगे? by a rule. by जो रूल है उससे भी इजी है. 3 दिया है, 3 भी पॉजिटिव साइन में था, 5 भी पॉजिटिव साइन में था, तो आप क्या करोगे? you will write 3 plus 5 it is equal to 8. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. चेंज आएगा तब जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे, तब यू विल फाइंड द डिफरेंस. ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला जो रूल है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड रूल. सेकंड रूल में भी हम एक एग्जांपल को देखेंगे जिसको हम नंबर लाइन पे भी प्लॉट करेंगे और उसी को हम लोग रूल से भी एडिशन करेंगे. सेकंड रूल में क्या है? सेकंड रूल में it is saying that whenever we we have to add two integers which have a negative sign. मतलब जब भी हम दो integers को ऐड करेंगे जिनका नेगेटिव साइन है, तो हम दोनों में क्या करेंगे? हम उसको ऐड करेंगे. मतलब अगर दो इंटीजर्स दिए हैं जिनको हमें ऐड करना है बट उनका साइन नेगेटिव है, तब भी आप उनको क्या करोगे? तब भी आप उनको ऐड ही करोगे. माइनस साइन देख के माइनस नहीं करोगे. कैसे हुआ ये देखेंगे. ठीक है, सपोज यू हैव -3 माइनस 5. ठीक है, ये तो साइन हुआ इंटीजर का. ये वाला जो साइन जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको बता रहा है कि आप कर रहे हो क्या? आप यहाँ पे कर रहे हो सब्ट्रैक्शन. जो 3 के आगे माइनस साइन है वो उसका रिप्रेजेंटेशन है. 5 के आगे जो माइनस साइन है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन. पर बीच में जो हाईलाइटेड माइनस साइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सब्ट्रैक्शन, दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इंटीजर्स. पहले हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखेंगे. Okay, first we will plot this on the number line. Since you
यू कैन सी बेटा देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम सिर्फ वही साइड बनाएंगे नंबर लाइन का जहां से हमें नेगेटिव इंटीजर्स दिखे, है ना। तो दिस here we will plot the number negative integers. First of all, let us take -1, -2, -3, -4, -5 and -6. Okay. -7, and here you have -8. Okay. So now हमने अभी पढ़ा है जब हमें ऐड करना होता है तो हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे बेटा हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो वी विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। इनिशियली वी वर ऑन -3, हमारी जो पहली पोजीशन थी वो थी -3। -3 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब -3 से हमें लेफ्ट साइड मूव करना है 5 स्टेप्स लेने, क्योंकि यहाँ पे कितना हमें माइनस करना है 5, ठीक है। तो यू विल टेक 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप जब 5 स्टेप्स लेके माइनस की तरफ क्योंकि सब्ट्रैक्शन दिया है तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो व्हेन यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम -3 एंड मूव 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, आप देखोगे बेटा यू हैव रीच्ड टू -8, है ना। आप कहाँ पे पहुंचे हो -8 पे। ये तो थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने नंबर लाइन के थ्रू की। हम ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो भी है नंबर्स की वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते थे आराम से, हमें ये रूल्स की कोई जरूरत थी नहीं। पर ये रूल्स की जरूरत कैसे आई, ये तो आप नंबर्स जो देख रहे हो दे आर सिंगल नंबर्स। अगर 1 7 2 8 है ना, इसको आपको 9 9 6 8 6 इतने बड़े नंबर्स का एडिशन करना है ना, क्योंकि इंटीजर्स तो होते हैं इंफिनिटी तक, तो ये बड़े बड़े जो नंबर्स हैं दे विल बी आल्सो बी हैविंग नेगेटिव साइन। तो इफ इन अ क्वेश्चन आपसे इतने बड़े नंबर्स पूछा जाए तो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू प्लॉट दीज ह्यूज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन? बिल्कुल भी आसान नहीं होगा आपके लिए प्लॉट करना ये नंबर्स को नंबर लाइन पे। इसीलिए हमने जो रूल्स निकाले हैं ताकि हम इसको रूल्स के थ्रू इजीली कर सकें। अब हर क्वेश्चन में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ द नंबर लाइन, ठीक है। आप देख सकते हो कि बहुत टायरसम वर्क है कि आप बार बार नंबर लाइन पे लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, प्लॉट कर रहे हो पॉइंट्स, फिर आप लेफ्ट मूव करना है कि राइट मूव करना है, ठीक है। छोटे नंबर्स के लिए तो इट इज वेरी इजी, बट व्हेन वी आर डीलिंग विद बिग नंबर्स देन वी कैन नॉट प्लॉट सच बिग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, हेंस वी हैव used these kinds of rule। तो मैंने ये क्वेश्चन बेटा आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा दिया। नाउ द सेम क्वेश्चन वी विल डू थ्रू द रूल मेथड। बाय रूल हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, है ना, ये आपको करना है सब्ट्रैक्ट। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इंटीजर। अब हमने जब ये रूल देखा था, ये जब दो नेगेटिव साइन होते हैं तो हम साइन कौन सा करते क्या है, तब हम लोग करते हैं ऐड, तब हम साइन लगाते हैं प्लस का, ठीक है। आपकी एडिशन में जस्ट अ मिनट एवरीवन,